Yes, good afternoon, everyone. I hope I'm audible. Yes, Mr. Sandy, you're audible. Thank you very much. Sorry for the little bit of technical snag regarding the internet connection. So here today we are all meeting in order to share that how GJPC can help all of you exporters, those who have been exporting and those who are thinking of getting into exports, that how GJPC can help you all to grow your business and make sure that the country grows, and as well as we as individuals and entrepreneurs and business people and exporters can grow as well. Yeah, can we please move on to the next slide? So there are certain questions that we all need to address, and why you should join GJPC, which is the apex body for the gem and jewelry sector in terms of growing your business. Those are certain basic questions of growth. But would you like to increase exports? Do you know that what are the various policies and the customs related issues that are related to the sector, and how we can make use of the policies, benefit from them, and overcome challenges that comes across because of certain policies? Do you have all the market information that if you want to export to a particular destination, a particular country, who are the best buyers there? How is the market behaving? Also, along with the business part of it, if you want to take care of your people, because it is the people who's driving your business, how can you take care of your people? Are there any benefits that you will derive from being a member of the GJPC? And along with that, we all know that today we are in a knowledge economy. It is not as easy and it is not as simple. You think that just producing products and then selling it to the market will solve your problem. No, we have to continuously upgrade ourselves. So if there are any kind of skill upgradation program in order to understand and grow your business more, where would it be a great place to learn all those things? I think answering all these queries that we all as businessmen have in our mind, GJPC would be the right answer to all these questions. Can we move on to the next slide? So today, as I said before, that the agenda should be very, very straight and to be very, very focused. That where we need to understand your needs, we need to understand how we can serve you better and help you to grow your business. And you will need to understand that how GJPC can serve you to grow your business. What are your expectations from GJPC, and what is that we have been doing all this while that has helped many, many exporters to grow their business, and how we can help you to grow more. Next slide, please. This is a little bit of history for all of you who is not aware of GJPC. So we have been serving the nation since 1966. I think that was the incipient stages in which we have started. India has started growing as a nation and focusing on exports. And here you can see that how the first show, the whole creative advertisement during 1985, that GJPC started its first export-oriented show. There have been training and development initiatives. There have been representations given to the government on behalf of the industry. We have started our testing and certification labs, and various places and various times we have been encouraging all our energetic entrepreneurs who are taking India forward with their exports, with their all their trade efforts. So there have been lots and lots of things that we've been doing for so many, many years. Next slide, please. These are certain pictures. Recently, our honorable chairman, he has been collaborating with the finance minister, with the commerce ministry. Various meetings have been happening with regards, suggestions have been being done regards to duty, policies, e-commerce policy, lots and lots of things we've been doing. These are certain clippings of the same. Yes. Next slide, please. So simply put, that what is the vision and the mission? Because without a vision, it is very difficult for anyone to act. So the vision of GJPC is to make India the preferred source for quality gems and jewelry. We all are striving that all across the world, whichever country we can talk about, they should consider India
as the jewelers to all of them. If they have to buy jewelry, they must think of India as the destination to buy their diamonds, to buy their jewelry. So that is the vision with which we are working towards. And the mission is that to enable every individual associated with the Indian gem and jewelry industry to achieve their full potential. And that individual is not just the entrepreneur and the businessman, but the various vendors, the various karigars, the artisans, everyone who is associated with the business, how we can help them to add value to their life is what we are all working towards. Today, we are at 5.6% of the global export business of $650 billion that we have. We are about $36 billion export that we are doing today. But the vision is that we have to take 10% of the market share and $75 billion of exports by 2025. Today, we are employing about 4.28 million workers, organized and unorganized market put together. And again, where we want to go is to employ 7 million people with our social security initiatives for their better well-being, and also to employ and give them a respect in life. Next slide, please. So here we can see that how exports for India has been in a growth stage. In 1998, 1999, we were at 6.2 billion. Today we are at 39.75 billion. Correct me with the billions and the millions, because these digits, you can see the 5 times growth that we have had in the last 20 years. And with all the market situation that we have today, the way US-China relationship is working, where there is an opportunity for India with the Quad that we are forming with Japan, with Australia, with US, and India coming together. Europe is a market, yes, it's going through its difficult times, but once it will come out of its challenges, and then it's a great market to export the various kind of jewelry. Africa is a growing market. Middle East is going through an evolution. So there are opportunities that are coming up across the world, and then that will only help us to avail of the opportunities and move forward. Next slide, please. So these are the various services, summarizing that we've been giving to our various members. Helps in business exports and promotion, supporting in representing and resolving issues related to customs, related to RBI, related to any kind of agencies, strong hand-holding the MSME members, having employee welfare programs so that the employees are better off, supporting members in enhancing their skills, the lab services, certification of diamonds and gemstones, providing trade and market information, and various events and business development projects that we have been taking in along with us. And finally, there are CFCs, infrastructure that is being built across the country, be it Gujarat, be it Bengal, be it Coimbatore, be it Delhi, where karigars and entrepreneurs and exporters can avail of the machineries and modern technology. Yes, next slide. So thank you all. We would like Mr. Neville, a very, very active member of our committee, taking lots of initiatives with regards to SEZ related work and export related work, to carry forward the presentation. And welcome to all of you once again. Thank you for taking time out from your valuable busy schedule. And Mr. Neville, kindly take forward and guide everyone. Mr. Neville, are you hearing? I think. Sanjay ji, am I audible? Yes, you are. Yeah, you are audible, but I think some connectivity issue with Mr. Neville Tata. Oh, okay. So while he's joining, Neville bhai, kindly let me know when you're here, so we can continue with the slides. So these are certain business and export promotions that have been done by GJPC in the last 1 year, especially in the COVID time. There have been lots and lots of initiatives, because we did not think that while everything is under lockdown, businesses will slow down, because there are opportunities that are coming up. A lot of virtual activities have happened, a lot of special initiatives with regards to certain countries, collaborations,
dialogues with the commerce department of various countries have happened. So these are a few glimpses we would like to all of you to see that was done by us. Swankarji, sorry, I got just disconnected for a while. Can we have the next slide, please? Yes, yes, thank you, Neville Bhai. It will be nice to take forward the presentation. Thank you. We'll take you through some of the benefits that GJEPC does for their members. Most importantly is the IIGS show, which we all are most aware of, and we must have heard about it. There is one signature show that happens in February and one premiere show that happens in August. And whenever we have these shows, it's a worldwide network platform with domestic and international buyers. About 1,350 exhibitors, 2,500 booths, almost 40,000 visitors visit that show, 800 plus cities in India, and 80 plus countries. Now, as Suvankarji was explaining that, 2020 has been a difficult year for all of us, but it has not stopped GJEPC from taking business forward, for India as exports or jewelry manufacturing is concerned. So they also organized a IIGS show, which was virtual. And that was the need of the hour, which also had a very good response. It had 330 exhibitors, about 10,000 buyers in it. It had 9,900 meetings plus meetings, 200 international visitors from US, UK, UAE, Thailand, etc. And approx 1,000 crore business was transacted in this difficult time of 2020 also. The other show that we also organize is the Indian Gems and Jewelry Machinery Expo, which is the IGJME. This is for members and non-members also. Can we have the next slide, please? We also do a lot of buyer-seller meets, which is the short form is BSMS. And in these meets, we organize, foreign buyers to come and meet our Indian companies and transact business. So as a routine, there are 10 plus such BSMs every year. There are 500 plus international buyers throughout BMS every year. Some of the new representations were from Qatar, Doha, Australia, USA, of course, China, of course, Dubai, Kuwait, etc. And assisting MSSE, MSME members to explore new markets through various MSME schemes. Now, again, during 2020, the challenging year, also virtual BSMs were conducted, and 6 BSMs in 2020 during COVID-19 period were done. And this was also a very successful program which was carried out. It covered 18 markets existing of UK, China, Bahrain, Kuwait, Qatar, Spain, Mexico, quite a wide range of countries which were covered. It covered all products, loose diamonds, gold, jewelry, gemstones, silver, diamond jewelry, etc. It connected with over 150 international buyers and exhibitors, which itself is a very big achievement by the council. And if you see on the extreme right-hand side under the gift box is the benefits that the members got compared to being non-members. The actual charges for this program was about 1,40,000, which was subsidized charges for members was 55,000, exclusive of GST. And this was support in creating exhibitors, product dictionaries, directories with high resolution product images. Can we have the next slide, please? You must have heard about the Indian pavilions at all the major shows that happens. We as members get preferences in the Indian pavilion, which is supporting members to showcase their products in foreign countries through Indian pavilions. So we get a special area where we as Indians can exhibit our products, participate in all important shows the world every year, including Hong Kong, Arabia, Vicenza, JCK, etc. The show attracts about 50,000 plus buyers from across the world. And even in these difficult times of 2020, because of the pandemic,
GJEPC Council has still managed to do an Indian Global Connect and business network meeting with foreign buyers, exploring new business opportunities. Again, with UK, Angola, Switzerland, Oman, Colombia, Singapore in 5 months. Expected more in this year with Italy and Japan, etc. Here also there was a discounted fee for the members compared to 20,000 what you would actually pay, but a member can only pay 10,000 for it. Can we have the next slide, please? So again, just to run you through that, what kind of different agencies the council deals with and what kind of representations and resolving of issues that they do. Like, a lot of policy issues that come up during our, working when we do our business. A lot of customs issues come up, a lot of banking issues come up. There are a lot of logistics and operational issues, tariff issues. All these issues can be sorted out if you are a member with GJEPC. And there are different regions. You have regional directors and you have regional offices where you can contact them, and they are most willing and most happy to resolve all your issues. And even if you have some kind of a strange issue that comes up specifically in your manufacturing region or your area or your SAZ, you can bring it up to the council, and the council will make sure that they take it up with all these separate agencies and resolve it for you all. Now, again, in April 2020 to February 21, the representations during the COVID period also with different agencies like Ministry of Commerce, RBI, Ministry of Finance, and other agencies, that we had about 100 plus representations and meetings we have conducted with the Government of India, about 125 plus meetings. So you can see how actively the council works to resolve all these issues. The recent successes that we have was customs duty on precious metal, gold, silver, platinum has gone down. Facilitated precious metal supplies to SEEPS units from FTWZ, thereby cost of procurements. Government clarified that courier exports of gems and jewelry items are permissible. Exhibition goods which got stuck up abroad during lockdown were permitted to be re-imported after expiry of stipulated period. So the council has really worked very hard to, help and facilitate all these issues which suddenly happened with the lockdown. Can we have the next slide, please? So again, here, strong handholding with MSMEs members. So policy awareness programs, counseling, training and workshop for developing skills and knowledge, assistance for small export to participate in international exhibitions and sales promotion tours, dedicated zones for MSMEs and IIGS at concessional rates, provides information, guidance about the various government schemes. This is something similar to what I already explained in the first slide. And the benefits that we have got out of this is that GJEPC gives a lot of weightage to MSME category manufacturer exporters for participating in the IIGS show. GJEPC has MOU with Yes Bank. Members will be levied with discounted service charge POs on machines, various financial assistance and gold exporters. 20% discount on purchase of Godrej Safe from authorized dealer, and concession on purchase of Mercedes-Benz from authorized dealer. So if you are still having any doubt in your mind of becoming a member, I think the last point of getting a discount from a Mercedes luxury car should be a good enough reason for you to pay and become a member of GJEPC. You never know, it might benefit you. Can we have the next slide, please? So I would like to invite Mr. Bobby Kothari to take this forward to speak on health and of employee welfare. Thank you. Thanks, Neville. मर्सिडीज से ज़्यादा भी एक उससे भी ऊपर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ये स्लाइड में है, वो है अपने लोगों को सही समय में मदद पहुंचाना, और वो देता है स्वास्थ्य रत्न
जो काउंसिल ने बहुत बढ़िया तरीके से नेगोशिएट किया हुआ है। ये स्कीम के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। ये स्कीम आप 1+3 मेंबर्स, मतलब फैमिली के 4 मेंबर के लिए ले सकते हैं। कोई भी हम लोग एम्प्लॉय कवर करें उनका फैमिली कवर हो सकता है, और 1+5 भी हो सकता है। तो और ये स्कीम की 2-3 खास चीजें हैं जो कोई भी स्कीम में हम लोग ने बहुत रिसर्च किया है, लेकिन कोई भी स्कीम में अप्लाई नहीं होती है। पहला बेनिफिट इसका ये है कि उसमें पेरेंट्स कवर होते हैं, तो माता पिता कवर होते हैं 80 साल की उम्र तक। दूसरा बेनिफिट कि जो भी करंट इलनेसेस हैं वो सभी कवर्ड हैं इसमें। मतलब ऐसा नहीं, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है कि आपको 1 साल रुकना पड़े तो ही आपको ये बेनिफिट होगा। ये पूरी तरह से करंट इलनेसेस भी कवर्ड है। और काफ़ी इसमें कैशलेस की भी काफ़ी सुविधा है। तो मैं एक अपना खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। ये हमारा 5वां साल है जहाँ पे ये हम लोग बेनिफिट ये स्कीम में एनरोल्ड हैं। हमारे सभी टीम मेंबर्स इसमें एनरोल्ड हैं। पिछले 4 साल की एवरेज मैंने निकाली है, तो जो भी हम लोग ने प्रीमियम भरा है 136% उसका हमें क्लेम पास हुआ है। क्लेम रजिस्टर किया है वो नहीं, क्लेम पास होके एक्चुअली उसका पैसा हम लोगों की टीम मेंबर्स के पास आया हुआ है। 136% 4 साल की एवरेज में बता रहा हूँ। कोई साल में 200% भी आया है, कोई साल में 100% भी आया है, लेकिन एवरेज 136% है। खासियत ये है कि 52% जो बेनिफिशियरीज हैं वो पेरेंट्स हैं, ये हमारे केस की बात कर रहा हूँ, एंड 48% कैशलेस क्लेम्स है, जहाँ पे पर्सन को ऐसा नहीं है कि भी अभी आपको पे करना पड़ेगा, फिर 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद पैसा आएगा। और उनकी कैशलेस नेटवर्क भी बहुत बढ़िया है, एटलीस्ट खास करके बॉम्बे रीजन में, बट आई बिलीव के काफ़ी रीजन्स में उनकी नेटवर्क, आप बारगांव से काफ़ी लोग हैं तो उनके लिए भी ये अच्छी सुविधा अवेलेबल है। हमने एनरोल किया है 1+5 की स्कीम में, जहाँ पे आप अपनी तरफ से, मैं समझ सकता हूँ कि कोविड का टाइम है, अगर चैलेंजेस रहेंगी तो आप खुद भी ये स्कीम फंड कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, या अपने लोग भी इसका पैसा भर सकते हैं, तो दैट इज ओके। मतलब समझिए स्वास्थ्य रत्न जो कंपनी है जहाँ पे वो बेनिफिट कंपनी को भरना पड़े, लेकिन कंपनी अपने टीम मेंबर से पास से भी ले तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। तो और पार्शियली भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी ₹1,00,000 से 5 लाख तक का कवर आपको देती है। तो मैं तो मानता हूं कि ये अमेजिंग स्कीम है, और हर साल मैं हर कंपनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई कवर नहीं हुआ है इसमें, कोई मेंबर बन के कवर नहीं हुआ है, तो आई वुड डेफिनेटली फील कि ये कवर होना ही चाहिए। नीचे फिगर्स दिए हैं, 6 लाख से अधिक लोग इसमें कवर्ड हैं। फैमिलीज 1.8 लैक्स फैमिलीज अपनी इंडस्ट्री में से कवर्ड हैं, और टोटल क्लेम्स अभी तक 167 करोड़ के दिए हुए हैं। तो स्वास्थ्य रत्न बहुत ही बढ़िया स्कीम है जो सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, और काउंसिल ने स्पेसिफिकली उनका नेगोशिएशन किया हुआ है। स्वास्थ्य कोष करके दूसरी स्कीम है जो मेंबर्स के लिए नहीं, नॉन मेंबर्स के लिए है, लेकिन इसमें 2 बड़े अंतर हैं। पहले तो ये 1 लाख तक की लिमिट का ही है, अमाउंट है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेरेंट्स कवर्ड नहीं है। आगे बढ़ सकें प्लीज। काउंसिल के कई तरीके हैं जहाँ पे स्किल एनहेंसमेंट काउंसिल इधर फिजिकल स्किल लोगों का, या फिर आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए भी काउंसिल काफ़ी वेबिनार्स वगैरह करती है। तो काउंसिल के काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, IIGJ, सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी जो मुंबई में है, दिल्ली में है, जयपुर, वाराणसी और उडुपी में, और वो काफ़ी अलग अलग किस्म के कोर्सेज वो देते हैं। ज्वेलरी डिप्लोमा है वहाँ पे, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के है, कैड के कोर्सेज हैं, जेमोलॉजी के कोर्सेज है, काफ़ी अलग अलग कोर्सेज हैं। फिर दूसरा एक अभी मीन्स अब काफ़ी वर्कशॉप्स अभी शुरू की गई है, जो कैड में जो लेटेस्ट कैड की टेक्निक्स क्या है, कैड रेंडरिंग, खास करके अगर कोई आज के टाइम में सैंपल नहीं बनाना चाहता है और अपने बायर्स को सिर्फ इमेज भेजना चाहता है कि वो डिज़ाइन कैसी लगेगी जो आपने बनाई भी नहीं है, तो कैड रेंडरिंग के द्वारा जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जहाँ पे पीस बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप कंप्यूटर इमेजिंग करके ही इतना बढ़िया पीस दिखा सकते हैं। तो इसके बारे में भी कोर्सेज किए गए थे रिसेंटली। और एक कोर्स लाइट वेट ज्वेलरी, आजकल के टाइम में
इतना महंगा है तो लाइट वेट ज्वेलरी किस तरह से बनाई जा सकती है, वैसे टाइप के कोर्सेज भी काउंसिल ऑर्गेनाइज करती है। और बहुत सारे वेबिनार्स और सेमिनार्स, यहाँ पे लिखा है 97, ये ज़्यादातर सालों में 100 के ऊपर जाते हैं हर साल, और ये अलग अलग टॉपिक्स पे रहते हैं। चाहे आप बैंकिंग के लिए ले लें, एमएसएमई के रिलेटेड हो, अभी नया लेबर कोड आया हुआ है तो नया लेबर कोड पे पूरा डिटेल चर्चा हुई थी इसके बारे में। तो ये सभी काउंसिल ऑर्गेनाइज करती है। आगे बढ़े प्लीज। काउंसिल लेबोरेटरी सर्विसेज भी कोई जगह पे ऑफर कर रही है। मुंबई, जयपुर, दिल्ली और सूरत, यहाँ पे काउंसिल की सर्विसेज हैं, और कोई जगह पे वहाँ पे कुछ कंसेशनल चार्ज भी है मेंबर्स के लिए, जयपुर और दिल्ली में। यहाँ पे जो दिल्ली में IGI लिखा हुआ है वो IGI GTL है एक्चुअली, मतलब जो अपनी जो IGI लैब है वो नहीं, ये दूसरी काउंसिल की लैब है। और काफ़ी अलग अलग किस्म की सर्विसेज भी अपने मेंबर्स को ऑफर करते हैं। सर्विसेज का लिस्ट यहाँ पे मौजूद है, तो आप प्लीज़ देख सकते हैं। अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट, टर्नओवर सर्टिफिकेट, अलग अलग चीज़ों के लिए। तो ये काफ़ी ऐसी सर्विसेज भी सिर्फ मेंबर्स के लिए ये उपलब्ध है। आगे बढ़े प्लीज। मार्केट इंफॉर्मेशन द्वारा भी काफ़ी एजुकेशन काउंसिल अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज करता है। गवर्नमेंट के साथ में जो भी चर्चा होती है गवर्नमेंट के, उसके बाद जो नोटिफिकेशंस आते हैं, काउंसिल रेगुलरली अपने मेंबर्स को ये अपडेट करता है। काफ़ी इंफॉर्मेशन काउंसिल की वेबसाइट्स पे भी है, सॉलिटेयर इंटरनेशनल है, न्यूज़लेटर्स हैं, और काफ़ी ऐसी कुछ मार्केट इंफॉर्मेशन भी है। इंफॉर्मेशन सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, उनके बारे में भी। और मेंबर्स की जो भी दुविधाएं, हालांकि ये इजी नहीं है बिकॉज काफ़ी कुछ चैलेंजेस आते हैं, और प्रोसीजर सॉल्व करने का काफ़ी लंबा है, लेकिन काउंसिल अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती है ये इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए। आगे बढ़े प्लीज। काउंसिल की कुछ खास इवेंट्स पूरे साल में, जैसे कि काउंसिल के अवार्ड्स, डिज़ाइन वर्कशॉप्स और डिज़ाइन इंस्पिरेशंस की चीज़ें, आर्टिसन ज्वेलरी अवार्ड्स, बैंकिंग समिट, गोल्ड समिट, स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ऐसी बहुत सारी इवेंट्स जहाँ पे इवन गवर्नमेंट के काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स या इवन मिनिस्टर्स जो अटेंड करते हैं, ये सभी मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। आगे बढ़ने के पहले मैं 1-2 पॉइंट बताना चाहूँगा। अपनी एक ही इंडस्ट्री है पूरी, मतलब पूरे इंडिया में तो श्योर, जहाँ पे इतना बड़ा शेयर है, कोई भी इंडस्ट्री का इंडिया में पूरे विश्व पे इतना बड़ा शेयर नहीं है जहाँ जितना डायमंड्स और ज्वेलरी का है। मतलब काउंसिल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और अगर हमें ये पोजीशन इतने साल से मेंटेन की है तो डेफिनेटली इसका श्रेय सबकी मेहनत पे और काउंसिल के लगातार एफर्ट, गवर्नमेंट और अपने मेंबर्स के साथ में। मीन्स ये उसका लाइव रिजल्ट है। आगे बढ़े प्लीज। कुछ और प्रोजेक्ट्स है काउंसिल के, कुछ जो अभी चालू है जो डायमंड से ज़्यादा रिलेटेड है। मैं जानता हूँ यहाँ पे आई थिंक ज्वेलरी वाले ज़्यादा मेंबर्स हैं, लेकिन रफ डायमंड के व्यूइंग के लिए कुछ सेंटर्स यहाँ पे बॉम्बे और सूरत में ये भी काउंसिल ऑर्गेनाइज करती है, और ये भी खास मेंबर्स के लिए है। और CFC मतलब कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर, ये काउंसिल ऑलरेडी डायमंड में काफ़ी खोल चुकी है। अभी एक कलकत्ता में भी इनॉग्रेशन होने वाला है एक छोटे CFC का। मतलब कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर का मतलब ये कि अभी अगर आप SEZ में है या कोई एरिया में है, तो कई बार आपको कास्टिंग मशीन से लेके रिफाइनिंग मशीन से लेके सभी चीज़ें अपनी यहाँ पे सेटअप करनी पड़ती है। कॉमन फैसिलिटेशन के द्वारा काउंसिल की ये गवर्नमेंट से ये डिस्कशन चालू है, और 2 मेगा CFCs हम लोग कोशिश कर रहे हैं शुरू करने के लिए, और ये अच्छी तरह से आए तो गवर्नमेंट और भी जगह पे ये एनकरेज करेगी। एक जो सूरत में होगा, दूसरा मुंबई में होगा। यहाँ पे सब लेटेस्ट इक्विपमेंट ये कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर्स में लाएंगे, चाहे वो प्लेटिंग का हो, एनेमलिंग का हो, कास्टिंग का हो, 3D प्रिंटिंग का हो, या लैब ग्रोन डिटेक्शन का हो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग मशीन्स। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट काउंसिल के मेंबर्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं,
और गवर्नमेंट को प्रपोज करेंगे। होपफुली गवर्नमेंट की ग्रांट की भी के लिए भी कोशिश करेंगे, जहां पे काफी हद तक मशीनरी की ग्रांट गवर्नमेंट भी दे। ये कोशिश भी जारी है। अगर ये होता है तो एक्चुअली सभी कंपनीज को, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, वो ये सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो मैं एक तरीके से ये पॉइंट को उबराइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बताऊंगा, राइट। तो आप जितना, जैसे आप उबर यूज करते हैं, टैक्सी यूज करते हैं, आप जितना चाहे यूज करें, आपको गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है। वैसे ही CFC में हम लोग की कोशिश है कि सभी लेटेस्ट इक्विपमेंट है, आप चाहे उनको आधा घंटा यूज करें दिन में या फिर 3 घंटा यूज करें, लेकिन आप उसी का अमाउंट भरेंगे। तो ये भी काउंसिल का बहुत ही एक अहम प्रोजेक्ट है जो हम लोग ज्वेलरी में वर्क कर रहे हैं अभी। आगे बढ़े प्लीज। अब मैं संजय सिंह जी को आगे बताने के लिए आमंत्रित करूंगा, प्लीज। थैंक यू बॉबी भाई। आप लोगों की जानकारी बता दूं, बॉबी कोठारी जी हमारे को कन्वीनर हैं SEZ कमेटी के, और आपने एकदम सही कहा कि जेम ज्वेलरी सेक्टर जो है इंडिया की इकोनॉमी में एक बहुत ही वाइटल रोल अदा कर रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में हमारा शेयर 14% है, और इंडिया की GDP में हमारे सेक्टर की एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन करीब 7% है। जो हमारे अदर दूसरे इनिशिएटिव्स हैं उसमें ECG एनरोलमेंट के जरिए हम मदद कर रहे हैं, बैंक अकाउंट ओपनिंग और लिमिट्स में भी हम मदद कर रहे हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो आपको गोल्ड जो लेना पड़ता है वो अपने एक्सपोर्ट के लिए जो ड्यूटी फ्री गोल्ड मिलता है, उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको नॉमिनेटेड एजेंसी से करवाना पड़ता है, उसमें भी हम लोग काफ़ी मदद करते हैं लोगों की, जितने भी हमारे एक्सपोर्टर मेंबर्स हैं। जैसा कि अभी बॉबी भाई ने बताया भी था कि हमारे जो भी समस्याएं कठिनाई आती हैं, GST से हो, इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, या एक्सपोर्ट प्रोसीजर, कस्टम्स के टैरिफ के इश्यूज हैं, उस पे हम लोग कंटिन्यूसली और बहुत ही विगरसली उसको फॉलो करके उन इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी बॉबी भाई ने बताया भी कि FTWZ से गोल्ड सप्लाई को, SEZ यूनिट्स के गोल्ड सप्लाई और सिल्वर सप्लाई को काफी ईज आउट किया गया है। एक हम कोशिश और अभिनव प्रयास कर रहे हैं कि इस कोरोना पीरियड के अंदर जो है कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट्स जो री इम्पोर्ट नहीं हो पाए थे और उनकी 1 साल की मियाद एक्सपायर हो गई है, उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं सरकार से कि कुछ रिलीफ मिल जाए, ताकि जो एक्सपोर्ट्स अभी री इम्पोर्ट नहीं हो पाए वे भी हो पाए। ये सब चीजें, प्रयास जो हमारे हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सिलसिले में ही है सारे। रॉ मटेरियल सोर्सिंग में हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि अभी बॉबी भाई ने बताया कि SNZ जो है हमारे सूरत और बॉम्बे में, वो रॉ मटेरियल सोर्सिंग के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि रफ डायमंड्स की सोर्सिंग इजीली अवेलेबल हो जाए स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए। गोल्ड अवेलेबिलिटी के भी इश्यूज हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कंटिन्यूसली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो SEZ डिवीजन है, उसमें हम लोग टाइम टू टाइम जो भी कठिनाई आ रही है उसको आगे उनको बढ़ा रहे हैं और उसको फॉलो भी कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंडस्ट्री से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसमें जैसे हम लोग न्यू बॉम्बे के अंदर एक ज्वेलरी पार्क लेके आ रहे हैं, ताकि जो यूनिट्स हैं वो वहाँ पे सभी एक ही कैंपस के अंदर, एक ही प्रीमाइसेस के अंदर सभी को एक यूनिट भी हो और कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स भी हो, और उनको एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाए। सिमिलरली जयपुर में हम लोग ला रहे हैं जेम ज्वेलरी बूट्स। स्टेट गवर्नमेंट से काफी एडवांस स्टेज में बातचीत चल रही है, होपफुली जगह भी मिल जाएगी हमको और जल्दी ही उसको हम लॉन्च कर देंगे। वो एक अपने आप में एक ऐसा, पूरे इंडिया में एक ऐसा इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स होगा कि जहां जेम ज्वेलरी का SEZ, जेम ज्वेलरी इंस्टीट्यूट दैट इज IIGJ जयपुर, टेस्टिंग सर्टिफिकेशन लेबोरेटरी, एग्जीबिशन ग्राउंड, ये सब 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे काउंसिल काफी आगे काम कर रही है। सिमिलरली हम लोग जो है फैसिलिटेशन सेंटर्स पर काफी कुछ प्रयास इसी दिशा में कर रहे हैं। कैन यू प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक चीज हम दूसरी कंट्रीज में भी हम लोग अपने कोऑर्डिनेटर्स के जरिए जो है
अपने एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट दिलाने की कोशिश करते हैं। जब हमारे बायर सेलर मीट्स होती है तो उन कोऑर्डिनेटर्स के जरिए हम अपने यहाँ बायर्स को लाने की प्रयास करते हैं। वो हमारे एक आम है हमारे जो उन कंट्रीज के अंदर। अब मैं मेंबरशिप फीस स्ट्रक्चर के बारे में आता हूँ। जब आप लोगों को जब बताया गया है कि ये बेनिफिट्स हैं, तो जाहिर बात है कि आप लोग जानना चाहेंगे कि क्या फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो फीस स्ट्रक्चर जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जब तक कि जो एमएसएमई सेक्टर के जो एक्सपोर्टर्स हैं जिनका कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट टर्नओवर 40 लाख रुपए सालाना तक है, उनके लिए एक स्पेशल स्कीम है जिसमें 1000 रुपए में उनको एक सालाना फीस जो देके वो मेंबर बन सकते हैं। नॉर्मल एक्सपोर्टर के लिए जिसकी की एक्सपोर्ट 25 लाख है, उसको सालाना फीस जो है हमारे यहाँ 6000 रुपए और उस पर एप्लीकेबल जीएसटी देनी पड़ेगी। जीएसटी 1000 वाले पे भी लगेगी, वो करीब 180 रुपए है। 18% की रेट से जीएसटी लगेगी। फिर उसके आगे क्रमशः स्लैब में दी हुई है, आप देख सकते हैं कि 25 लाख से 1 करोड़ तक की अगर आपकी एक्सपोर्ट है गत प्रीवियस ईयर्स में, एफओबी वैल्यू अगर उसकी 1 करोड़ रुपए है तो उसके लिए आपको 10,000 रुपए सालाना फीस देनी होगी। 5 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में अगर आपकी एक्सपोर्ट है तो वो फीस 30,000 रुपए, और 15 करोड़ से 50 करोड़ तक के लिए 40,000 रुपए, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक जो है 65,000 रुपए, सॉरी 50 करोड़ से 100 करोड़ तक के लिए 65,000 रुपए, 100 करोड़ से 500 करोड़ तक के लिए फीस है 1 लाख रुपए, 500 करोड़ से 1000 करोड़ तक फीस है 1.5 लाख रुपए, और 1000 करोड़ से ऊपर जो है वो फीस है आपकी 1,50,000 रुपए, सॉरी 2 लाख रुपए। इसके अलावा फर्स्ट टाइम जब आप मेंबरशिप लेते हैं तो एक एडमिशन फीस, वन टाइम एडमिशन फीस हम और चार्ज करते हैं 5,000 रुपया प्लस जीएसटी। ये फीस 40 लाख के जो एक्सपोर्टर्स है, जो माइक्रो एक्सपोर्टर्स कहलाते हैं, उस पे लागू नहीं होगी ये फीस 5,000 रुपए। ये फीस लागू होती है 25 लाख तक के एक्सपोर्ट्स जो है उन पे। यानी जो आप स्लाइड देख रहे हैं उसमें जो सेकंड एंड ऑनवर्ड्स हैं उस पे ये 5,000 रुपए लागू होगी, जो फर्स्ट कैटेगरी है उस पे लागू नहीं होगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब सवाल ये आएगा कि आप मेंबर कैसे बनेंगे। तो ये हमारे यहाँ मेंबरशिप ऑनलाइन प्रोसेस है। आपको ggapc.org पे लॉगिन करना पड़ेगा और उसमें मेन्यू में सेलेक्ट करिए क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन। उस पर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ड्रॉप डाउन होगा, उसमें आपको डिटेल्स भेजनी पड़ेंगी, वो डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। वो डिटेल्स भरने के बाद वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने पे आपको सबमिट करना पड़ेगा और आपका एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा, जो भी रजिस्टर्ड मेल है उस पे आ जाएगा आपके पास। वो रजिस्टर्ड मेल पे जो आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसको जरा प्रिजर्व करके रखिए, ताकि आगे फ्यूचर में जो भी आपको कार्रवाइयां करनी है उसमें भी काम में आएगा। प्लस अब जो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं वो भर के उस पे सबमिट करना पड़ेगा। ये हो सकता है अभी आपको ये लग रहा है कि बहुत आसान है, या हो सकता है आपको सोचने में कठिनाई आ रही हो, तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था कर रखी। जो हमारे ऑफिसेज हैं इंडिया भर में, जो 5 ऑफिस, रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस, वहां पे हमारे अलग से मेंबरशिप सेक्शन है। आप किसी भी ऑफिस में फोन पे कॉल करके, और आपको जो कठिनाई आ रही है मेंबरशिप फॉर्म भरने में, रजिस्टर करने में, आप उस पे जो है हमसे फोन पे बात कर सकते हैं और हम आपको गाइड भी कर देंगे कि जो है आपको मेंबरशिप में कहीं दिक्कत आ रही है तो आपको ऑनलाइन हम बता भी देंगे कि आप इसमें ये इस तरह से भरिए ताकि आपकी मेंबरशिप कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो कृपया नीचे चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। रश्मि, आप क्वेश्चंस ले लीजिए। हाँ संजय जी, बहुत सारे क्वेश्चंस तो क्वेश्चन आंसर बॉक्स में भी है और चैट बॉक्स में भी है। जैसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम वी पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल ट्रेड शो हेल्ड वर्चुअली, लॉजिस्टिक्स फॉर सिल्वर आर्टिकल्स और गोल्ड स्टडेड ज्वेलरी $1,000 and less is a nightmare. I would like to know how the council can help in reaching the Indian diaspora outside the country. BVC sequel
इन लोगों से अगर छोटा आइटम्स भेजे $1000 के नीचे में, तो लॉजिस्टिक इज अ नाइटमेयर। ये मिस श्वेता सराफ उनका ये क्वेश्चन था। बॉबी भाई, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जल्दी ही एक तो ई कॉमर्स पॉलिसी आ रही है सरकार की तरफ से, हो सकता है इस महीने के आखिर में या अगले महीने की शुरुआत में वो ई कॉमर्स पॉलिसी आ जाएगी। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया भर के अंदर 850 सिटीज के अंदर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर शुरू करने जा रहा है, जहां की आप अपने एक्सपोर्ट जो छोटे, जो जैसा कि आप बता रही हैं कि $1000 तक के, तो वो शिपमेंट्स आप उन स्पीड पोस्ट या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो सुविधा है उससे भेज सकते हैं। अच्छा, ठीक है, फिर और डिटेल्स में दे कैन श्योरली कनेक्ट। इस पे काउंसिल अपडेट करती रहेगी, जैसे ही ये लॉन्च होगा काउंसिल अपडेट करेगी मेंबर्स को। फिर एक मिस्टर वैभव जैन ने पूछा है कि अगर डोमेस्टिक टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है मगर एक्सपोर्ट्स कुछ भी नहीं है, 40 लाख से नीचे है, तो वो फी कौन सा रहेगा? वो 6000 रुपए होगी। 6000 रुपये होंगे। ओके ओके, ठीक है। फिर एक मिस्टर जैन फिर पूछा है कि अगर अमेरिका में कस्टमर है और कोई उनका रिलेटिव इंडिया से लिया और बिल अमेरिका में लेके गया और अमेरिका से कोई अगर पेमेंट करता है, तो वो क्या एक्सपोर्ट बोला जाता है? नहीं, एक्सपोर्ट के लिए आपको कोई शिपिंग डॉक्यूमेंट, चाहे वो पोस्टल बिल ऑफ एंट्री हो, पोस्ट से भेज रहे हैं तो पोस्टल बिल ऑफ एंट्री हो, या सॉरी पोस्टल शिपिंग बिल हो, या जिसको कि पीबी कहते हैं, पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट, या आपको कंसाइनमेंट लगाना पड़ेगा, तब वो एक्सपोर्ट माना जाएगा। पर्सनली यदि कोई कैरी कर रहा है और उसका कोई कस्टम ने एग्जामिनेशन या कस्टम के थ्रू नहीं गया, तो वो एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। अच्छा, फिर मिस्टर अग्रवाल ने पूछा कि कस्टम्स के साथ खुद को एज अ ज्वेलरी एक्सपोर्टर कैसे रजिस्टर किया हुआ जाता है? सबसे पहले तो आपको काउंसिल से रजिस्टर होना पड़ेगा। अगर आप कोई बेनिफिट गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल आपको अगर गोल्ड या सिल्वर ड्यूटी फ्री लेना है, तो वो आपको कस्टम्स में एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, जिसको वो केवाईसी कहते हैं। वो केवाईसी में आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, पैन और टैन कंपनी के जो हैं वो लेना चाहेंगे, वो लेते हैं, और उसके बाद फिर आपका एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन आंसर वाला बॉक्स हम लोग देखे हैं। नाउ हम लोग आ जाते हैं चैट वाला बॉक्स में। वहाँ पे मिस्टर डीसी करेल वो पूछ रहे हैं कि जीजेपीसी एपेक्स बॉडी के तौर पे हम लोग बोल रहे हैं जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में, तो जीजेसी भी बोलते हैं, तो उनमें अलग क्या है? तो ये संजय जी हम लोग कैसे ये करें? देखिए, हम लोग एक्सपोर्ट्स के लिए हैं, फॉर एक्सपोर्ट मैटर्स हम लोग हैं। जीजेसी एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने मैंडेट्स हैं, अपने जो कस्टमर बेस या जिसे कह सकते हैं मेंबर बेस अलग अलग है। तो जहां तक जीजेपीसी का ताल्लुक है, तो हम लोग एक्सपोर्टर्स की सर्विस के लिए हैं। ठीक, एकदम हम लोग का फोकस रहेगा कि बिजनेस को एक्सपोर्ट्स के थ्रू कैसे आगे बढ़ाया जाए। जी। फिर क्वेश्चन है कि हम लोग कारीगर आर्टिजन्स के लिए क्या कर रहे हैं? एक तो है जो इंश्योरेंस में हम लोग उन लोग का बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, उनका पूछना है कि कोई जो एग्जीबिशंस हो रहा है या इंटरनेशनली हो या नेशनली हो, हम लोग अगर एक अलग से कारीगर, बडिंग कारीगर, अपकमिंग कारीगर या कारीगरों को एक अलग से जगह दे उनको, उनका प्रोडक्ट्स नया कुछ दिखाने के लिए। शुभंकर जी, अगर आपको ध्यान हो, और हमारे बहुत सारे लोगों ने, अगर लास्ट जो हमारा फिजिकल शो हुआ था सन 2000 के अंदर सिग्नेचर शो हुआ था, तो आप लोगों को यदि ध्यान हो तो हमने एक आर्टिजनल पवेलियन बनाया था, जिसके अंदर जो हमारे जो छोटे कारीगर हैं उनकी आर्ट को प्रमोट हमने किया था। सॉरी। उसके अलावा हॉल नंबर 5-6 में हमने
डिजाइनर्स का एक छोटा छोटा हमने क्यूबिकल्स बना के पवेलियन, एक अलग से पवेलियन बनाया था जिसमें डिजाइनर्स को हमने जगह दी थी। तो टाइम टू टाइम हम जो हमारी जो स्किल, हमारी आर्ट है, उसको हम हर साल प्रमोट करते हैं अपने शोज के अंदर। इसके अलावा जैसे कि आपने अभी कहा कि कारीगरों के लिए ही है ये हमारी स्वास्थ्य रत्न और ये सब पॉलिसी। आपको ध्यान हो तो अभी कोरोना पीरियड में हम लोगों ने कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उन कारीगरों को दी थी जो कि डेली वेजेस पे कहीं वर्क कर रहे हैं, जो किसी के पे रोल पे नहीं है। तो समय समय पे जीजेपीसी अपना एक्सपोर्ट का मैंडेट होते हुए भी जो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन करती रही है। राइट, ठीक है। और मिस भावना, शी इज सेइंग दैट उनको एक्सपोर्ट शुरू करना है, तो वो कहाँ से शुरू करेगा? मतलब उनको लीड्स कैसे मिलेंगे, उनको मतलब प्रोसेस कौन दिखाएगा? तो संजय जी इसके बारे में। देखिए, एक्सपोर्ट में सबसे पहले तो आपके पास पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर हो। तो क्या आपने उसकी तैयारी करी है? वो एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे मिलेगा आपको? तो हमारी जो इवेंट्स होती हैं, जैसे बायर सेलर मीट्स हैं वो, या हमारे एग्जीबिशंस हैं जो इंडिया में होती है, या हमारे फॉरेन एग्जीबिशंस में जो पवेलियन हम ऑर्गेनाइज करते हैं, वो इसीलिए है कि आप लोगों को एक मौका मिले शो अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने का, और उसके बेस पे यू कैन गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ऑन दोज प्रोडक्ट्स। तो वंस यू गेट द ऑर्डर, तब वो पिक्चर में आती है आपकी, भाई इसका मैन्युफैक्चरिंग करके या उसको सोर्स करके उसको एक्सपोर्ट करने के। तो सबसे पहला तो ये कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपके जो प्रोडक्ट है उस पे आप एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फेच करें, उस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लें। तो ये जरिए जो मैंने बताए हैं आपको कि हमारे जो शोज हैं या हमारी बायर सेलर मीट्स हैं या हमारे जो फॉरेन शोज हैं, उसमें आप हमारे पवेलियन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि अकेले आप कहाँ जाएंगे, एक कलेक्टिवली अगर हमारे प्रयास रहते हैं तो उसमें एक अम्ब्रेला के नीचे या एक पवेलियन के नीचे, तो कस्टमर्स जो फॉरेन कस्टमर्स हैं, फॉरेन बायर्स हैं, उनको भी दिक्कत नहीं होती है ढूंढने के लिए, और आपको भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो शुरुआत यहाँ से आप कर सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे फिर आप अपनी खुद की जो मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसके बेस पे आप अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करके या प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफाई करके आप उसमें एक्सपोर्ट में एंटर कर सकते हैं। स्कीम्स हैं कई गवर्नमेंट की जो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करती है। उसमें एक तो यही है कि आप या तो गोल्ड सिल्वर जितना लगा है आपका एक्सपोर्ट में, वो आप ड्यूटी फ्री ले लें। नहीं आप ले पा रहे हैं, या आपके यहाँ कोई नॉमिनेटेड एजेंसी नहीं है जिससे कि आप ड्यूटी फ्री गोल्ड ले लें, तो दूसरा जरिया है कि आप उसको ड्रॉबैक शिपिंग बिल फाइल करके, और ड्रॉबैक उस गोल्ड सिल्वर पे जितनी ड्यूटी आपने स्पेंड करी है वो आप रिकवर कर सकते हैं रिफंड के तौर पे। राइट। ऑल्सो ये जो बायर सेलर मीट जितनी भी हो रही है अभी, वर्चुअल बायर सेलर मीट्स, तो अगर उनका मार्केट उन्होंने तय किया हुआ है कि ये मार्केट के टाइप की ज्वेलरी हम लोग बनाते हैं, तो वो जो अलग अलग बायर सेलर मीट्स आ रहे हैं वहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शोज तो होंगे नहीं बॉबी जी, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी है और कंट्री स्पेसिफिक भी है जी। ये तो अभी क्या है, कोरोना पीरियड में हम लोग वर्चुअल में आ गए हैं, वर्चुअल बायर सेलर मीट कर रहे हैं, वरना उसके पहले तो हम लोग फिजिकल बायर सेलर मीट करते थे। तो हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी कर रहे थे और कंट्री स्पेसिफिक भी कर रहे थे। से फॉर एग्जांपल डायमंड के केस में हम लोग यूएस के बायर्स को लाके यूएस बायर सेलर मीट कर रहे थे डायमंड में। सिल्वर ज्वेलरी के लिए हम लोग जो है सिल्वर ज्वेलरी की अलग से बायर सेलर मीट करी है हमने फिजिकल फॉर्मेट में। सिमिलरली डायमंड स्टडेड ज्वेलरी की भी हमने करी है। हमने कलकत्ता के अंदर प्लेन गोल्ड ज्वेलरी की, और हैदराबाद और कलकत्ता में प्लेन गोल्ड ज्वेलरी की भी बायर सेलर मीट्स करी हैं। तो बिकॉज ऑफ कोरोना अभी चूंकि मूवमेंट, इंटरनेशनल मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए ये वर्चुअल फॉर्मेट में हो रही है। फिर संजय जी, एक कस्टमर रक्षित जी, ही इज सेइंग दैट मैं एक छोटा ज्वेलर हूँ, मेरा एक्सपोर्ट यूएस के लिए 3 महीना हो गया, बट कस्टम्स क्लियर ही नहीं कर रहे हैं। तो ये सब अगर प्रॉब्लम आता है तो वो क्या करेंगे? हाँ, मेरा इसमें सजेशन उनको ये रहेगा कि अगर वो बॉम्बे में है, जहाँ भी हैं, वो हमारे जो नियरेस्ट ऑफिस हैं, एक बार हम लोगों से संपर्क करें। वो
तो उसमें हम भी समझें कि उनको कहाँ दिक्कत आ रही है, तो वी विल बी एबल टू हेल्प हिम। राइट। जैसे हार्दिक भी ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा कि वो एक्सपोर्ट किए थे मगर EDPMS में कैंसिलेशन दिख रहा है, तो सारा मतलब बैंक, कस्टम्स, RBI सबको बोलने के बावजूद कुछ हुआ नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए यही रिक्वेस्ट रहेंगे कि वो अपना नियरेस्ट GJPC ऑफिस में कांटेक्ट करें। जी। एक दो अदर क्वेश्चंस शुभंकर जी, ऊपर दो दूसरे क्वेश्चंस है। कोई सब्सिडी CVD टेस्टिंग मशीन्स के लिए है मेंबर्स पे? हाँ ये क्वेश्चन है। और दूसरा एक इंपोर्ट ऑफ रफ डायमंड्स के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए और उसका कॉस्ट क्या है? संजय जी। इंपोर्ट के साथ जो गुड्स आते हैं, रफ डायमंड जो आती है, उसके साथ आपका जिस कंट्री से आ रहा है वहां से KP सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है, वरना वो वायलेशन होता है। तो उसके लिए आप ये ध्यान रखें कि जब आपका एक्सपोर्टर आपको रफ एक्सपोर्ट कंसाइन करे, उस वक्त उसके पास वैलिड KP सर्टिफिकेट उस कंसाइनमेंट के लिए होना चाहिए, जो कि गुड्स के साथ ट्रेवल करेगा। और उस जो आपके पास जो KP सर्टिफिकेट आएगा, उसका एंडोर्समेंट आपको काउंसिल के जो नियरेस्ट ऑफिस है, अगर आप सूरत में कर रहे हैं तो सूरत में, अन्यथा आप बॉम्बे में उसका वैलिडेशन करवाएंगे, उसके बाद ही वो गुड्स क्लियर होंगे। राइट। और दूसरा CVD टेस्टिंग के लिए एक क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक कोई सब्सिडी काउंसिल मेंबर्स के लिए अवेलेबल है CVD टेस्टिंग मशीन? नहीं, CVD टेस्टिंग के लिए कोई मेंबर नहीं है। अब जगह जगह देखे, आपके भारत डायमंड बूट्स में भी वो CVD की मशीन्स लगी हुई हैं, टेस्टिंग मशीन लेबोरेटरीज हैं, CVD टेस्टिंग वो लोग कर रहे हैं। जो भी आपने अभी देखा होगा, लेबोरेटरीज के नाम आए थे, IGI GTL दिल्ली, JTL जयपुर, IDI सूरत और GII मुंबई। आप यहाँ जाके अपने गुड्स का टेस्ट करवा सकते हैं, CVD की टेस्टिंग करवा सकते हैं आप। और ऑफिसेस, काउंसिल की कोई भी ऑफिसेस की अगर जानकारी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे है या इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, या तो आप काउंसिल की वेबसाइट पे जा सकते हैं संजय सिंह जी। एनी अदर? आप हमारी वेबसाइट gjpc.org पे जाएंगे तो वहां पे रीजनल ऑफिसेस का आपको अलग से मिल जाएगा, जिसमें एक एक ऑफिस का नाम और संबंधित ऑफिसर का नाम भी आपको मिल जाएगा। तो आप जिस भी एरिया में हैं, जो भी नियरेस्ट ऑफिस है, उसमें आप ले सकते हैं। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप यदि अगर रायपुर में बैठे हैं तो आप जयपुर ऑफिस को नहीं कांटेक्ट कर सकते। आप एक मेल डाल दीजिए इमीडिएटली। मान लीजिए आप जयपुर ऑफिस को रायपुर से बैठ के मेल डालते हैं, तो जयपुर ऑफिस तुरंत ही जो कंसर्न ऑफिस है उसको डाइवर्ट कर देगा आपकी मेल, और आपको भी बता देगा कि ये इनसे हम आपकी मेल फॉरवर्ड करिए, आप इनसे संपर्क कर लीजिए। और उनको भी एडवाइस करेगा कि आप इन जो ट्रेड मेंबर हैं इनकी हेल्प कर दीजिए। संजय जी, हम GJPC इंपोर्ट्स के लिए भी कस्टमर्स को हेल्प करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन था कि अगर हम इंपोर्ट करना चाहे तो वो भी GJPC का मेंबर बन सकते हैं और वो फीस वही सेम रहेगा? GJPC की मेंबरशिप, चाहे वो इंपोर्टर हो एक्सपोर्टर है, सबके लिए खुली है। इट्स एन ऑप्शनल, आप चाहें तो मेंबर बन सकते हैं। और चूंकि फीस का स्ट्रक्चर जो है वो एक्सपोर्ट पे है, तो अगर आपका एक्सपोर्ट नील भी है तो भी आपको जो मिनिमम फीस है 6,000 रुपए, वो आपको देनी पड़ेगी। राइट। तो और किसी का कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आप लोग चैट में या Q&A में टाइप कीजिए। हम लोग सब है आपका क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। एक वैभव जैन जी का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सपोर्ट ड्यूटी फॉर अमेरिका? तो एक बार मैं आपको जानकारी में दे दूं, भारत से एक्सपोर्ट करने के लिए कोई ड्यूटी नहीं है। नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर जो अमेरिका में प्रोडक्ट जाता है उसकी 5.7% या 5.6%, आई एम सॉरी, नॉट श्योर ऑफ दैट, बट वो ड्यूटी है जब अमेरिका में लैंड होगा। और क्लियर करने के लिए, ये फिनिश ज्वेलरी के लिए, अगर लूज डायमंड्स कर रहे हैं, लूज प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, ज्वेलरी के लिए ये ड्यूटी है। लूज डायमंड्स पे नहीं है जी। राइट। I don't think we can share the recording. Mayank ji पूछ रहे हैं कि he has missed the initial part. Can we have the recording after this?
श्वेता जी पूछ रहे थे कि नवी मुंबई में अपना ज्वेलरी पार्क कब तक खत्म होगा बनने, मतलब आई थिंक वी आर वेरी वो अभी प्लानिंग स्टेज पे है शुभंकर जी, अभी वो प्लानिंग स्टेज पे है। लैंड आइडेंटिफाई हो गई है। MIDC ने हमें कंसेंट दे दी कि यस दिस लैंड विल बी अलॉटेड टू यू। उस पे साइट डेवलपमेंट वर्क वगैरह दूसरे सब चल रहे हैं, काम चल रहे हैं, एक्टिवली काम हो रहा है उसमें। इट विल टेक सम टाइम बिकॉज अभी तो वो पोजीशन हमें लैंड का मिला नहीं है। राइट। और देखिए आप सभी लोग जो स्लाइड्स मिस किए हैं या जो स्क्रीन्स आपको क्लियर दिखा नहीं है, आप लोग को फिर से हम लोग समराइज करें कि GJPC हम लोग बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, पॉलिसी रिलेटेड, और कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी से अगर कोई दिक्कत आते हैं तो GJPC एज अ काउंसिल इज देयर टू हेल्प इट्स मेंबर्स। तो आपको एक्सपोर्ट करना है और आगे बिजनेस को लेके बढ़ना है तो GJPC के साथ आप मेंबर्स बनोगे तो ये जैसे मिस्टर अग्रवाल का कोई प्रॉब्लम है कि कैसे कस्टम्स के साथ रजिस्ट्री करे, कैसे करे, तो आप लोग नियरेस्ट GJPC ऑफिस में जाइए। मेंबर्स बनने से ये इंश्योरेंस बोलिए, ये BSMs बोलिए, मार्केटिंग इनिशिएटिव्स बोलिए, डेटा मार्केटिंग, डेटा ऑफ द वेरियस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बोलिए, आप जैसे जैसे इनिशिएटिव लेना चाहोगे GJPC विल ट्राई टू हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस एंड ग्रो एक्सपोर्ट्स इन इंडिया। यही इसका सारांश है। और हम लोग और भी देख रहे हैं क्वेश्चंस जैसे जैसे आ रहे हैं। एक गिरीश सोनी जी का क्वेश्चन है, आई वांट टू स्टार्ट एक्सपोर्ट ऑफ प्लेन गोल्ड ज्वेलरी, फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट, वेरी प्राइमरी। सबसे पहले तो शुभंकर जी आप चूंकि प्लेन गोल्ड ज्वेलरी के रीजन से हैं तो आप बेहतर इसमें जवाब दे सकते हैं। देखिए गिरीश जी, ये जो शुरुआत है इसमें पहले तो आपको मार्केट सर्वे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लेन गोल्ड ज्वेलरी आप US में भेजना चाहोगे, यूरोप में, सिंगापुर में या दुबई में, एक बार जाके आपको पहले क्या प्रोडक्ट्स चल रहा है, 22 कैरेट्स आप करना चाहोगे कि 21 कैरेट्स या 18 कैरेट या मशीन मेड, ये आपको आपका मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसीजर है वो आप देख के उस हिसाब से आप मार्केट में जाके मार्केट रिलेटेड डेटा इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे किस टाइप के ज्वेलरी चल रहे हैं, GJPC आपको गाइड करेंगे। और हम लोग जब शुरू किए थे तब मार्केट विजिट से शुरू हुआ था, एंड फिर वहाँ पे एक बार आपका मार्केट विजिट हो गया, आप 2-3 बायर्स से मिलेंगे, आपका प्रोडक्ट्स का पिक्चर्स कैटलॉग्स दिखाएंगे, एंड उस हिसाब से फिर जैसे GJPC का IIJS शो होता है वहाँ पे आप स्टॉल ले पाएंगे। हम लोग का अभी मेंबरशिप्स का रजिस्ट्रेशन चल रहा है जो डिजिटली हम लोग आपका लिस्ट हो जाएगा, तो जो बायर्स है वो भी देखेंगे कि अच्छा ये एक अच्छा सप्लायर नया आया है, नया डिज़ाइन है, अच्छा डिज़ाइन है, ठीक ठाक प्राइस में वो दे रहे हैं, एंड इस ऐसे करके आपका बिजनेस धीरे धीरे चालू होगा। तो फ्रॉम इंफॉर्मेशन, फ्रॉम प्लेटफॉर्म क्रिएशन कि क्या इंफॉर्मेशन चाहिए बायर के बारे में, या अच्छा बायर है कि कैसे है, ये सब GJPC आपको हेल्प करेगा। कौन सा मार्केट में टॉप बायर्स कौन है वो भी डेटा आपको मिलेगा, और फिर ये प्लेटफॉर्म्स जो है वहाँ पे आप शोकेस करेंगे, एंड फिर आपका एफर्ट के साथ साथ आप एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे। ये मेरा जर्नी वैसा ही था तो मैं वही शेयर किया। एक क्वेश्चन शशांक अग्रवाल जी का है कि एनी रेफरेंस ऑन होम शुड आई कांटेक्ट फॉर रजिस्टरिंग माई सेल्फ विद कस्टम्स। ऐसा कोई कस्टम से आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, ओनली IC इज नीडेड। आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो कि DGFT इशू करता है वो सफिशिएंट है। और कस्टम में जब भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पहला कंसाइनमेंट जो भी आपका शिपमेंट लगेगा तब वो KYC आपका करेंगे। तो KYC में वो जो डॉक्यूमेंट्स आपका जो CHA है वही मांग लेगा आपसे डॉक्यूमेंट कि भाई आपका पैन, आपके रजिस्ट्रेशन, अगर कंपनी है तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स यानी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या पार्टनरशिप डीड, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपका CHA ही मांग के उनको कस्टम्स को प्रोवाइड कर देगा, जिसके बेस पे वो KYC आपका कर लेंगे एंड देन इट बिकम्स रेगुलर प्रोसेस, फिर वो बार बार आपसे नहीं मांगा जाएगा। एक क्वेश्चन और था अबाउट रफ डायमंड की भाई मेंबर उसकी KP फीस जो है वो डिफरेंशियल रहेगी। यस,
मैं आपको बता दूं कि मेंबर्स के लिए केपी एंडोर्समेंट और केपी इशुएंस सर्टिफिकेट की फीस अलग अलग है। मेंबर्स को हम थोड़ा सा कम रेट चार्ज करते हैं, नॉन मेंबर्स को ज्यादा रेट चार्ज करते हैं, वो चाहे वो केपी इशुएंस हो या केपी एंडोर्समेंट हो। आई होप ये सारे सवालों के जवाब दे दिए। और कोई क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आ रहा है अभी। एक संजय जी, एक क्वेश्चन था कि इंश्योरेंस जो है वो कारीगर्स के लिए है, एम्प्लॉयज के लिए है, और जो ज्वेलर्स है उनके लिए भी हो सकता है, ये क्वेश्चन किए। हाँ, वो ले सकते हैं, वो ज्वेलर्स के लिए भी है। ठीक। एक अटेंडी ने फिर वही क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू एक्सपोर्ट अ लो कॉस्ट से $300 14 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी एज द कैरियर फी इज टू हाई। तो वो उसका जवाब यही है कि या तो अब जब कुरियर एक्सपोर्ट्स अब चालू हो गए हैं तो आप कुरियर एक्सपोर्ट्स लगा सकते हैं, और बाय पोस्ट भी आप जो भी नियरेस्ट फॉरेन पोस्ट ऑफिस है वहां भेज सकते हैं टिल द टाइम व्हेन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो अभी प्लान लेके आ रहा है कि देश भर के अंदर 850 सेंटर्स पे वो ये सुविधाएं देगा कि एक्सपोर्टर्स वहां जाके अपने जो भी एक्सपोर्ट शिपमेंट्स लगाना चाहते हैं छोटे वाले, वो वहां पे लगा सकें। वो काफी इकोनॉमिकल रहेगा क्योंकि उनके चार्जेस डेफिनेटली कम रहेंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल एयर फ्रेट। भावना जी ने पूछा कि बायर सेलर मीट कितना फ्रीक्वेंटली कंडक्ट किया हुआ जाता है। सुंकर जी मैं सुन नहीं पाया क्वेश्चन ये। बीएसएम कितना फ्रीक्वेंटली कंडक्ट हो रहा है, बीएसएम जो बायर बीएसएम अभी देखिए डायमंड ज्वेलरी की बीएसएम अभी चल रही है, तो हमने करीब 40 के करीब बीएसएम्स करी हैं अभी पिछले 1.5 सालों के अंदर, वो चाहे वर्चुअल हो या फिजिकल हो। एक सचिन जवेरी जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज बेनिफिट टू माइक्रो मेंबरशिप। माइक्रो मेंबरशिप को हम बिल्कुल नॉर्मल मेंबरशिप की तरह ही ट्रीट करते हैं, फर्क बस इतना है कि माइक्रो मेंबरशिप में आपकी फीस 1000 रुपए है, बाकी और बेनिफिट्स एक नॉर्मल मेंबर के ही जैसे हैं। और क्वेश्चंस मिस्टर करेल, आपका जो प्रश्न है कि कारीगर के लिए हम लोग जैसे बताए कि हम लोग इंश्योरेंस का इनिशिएटिव ले रहे हैं, और आज धीरे धीरे जैसे कारीगर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सोच रहे हैं, हम लोग CFC कर रहे हैं ताकि कारीगर वो CFC के जो बेनिफिट्स है मशीनरीज का, उसका बेनिफिट्स ले पाए। और एक GJPC कारीगर के लिए सोच रहा है, वो है कारीगर मॉडल वर्कशॉप, जहाँ पे कारीगर का जो जगह है कैसे उसका कंडीशंस बेटर किया हुआ जाए, एक मॉडल वर्कशॉप बनाएंगे, और फिर वो जो कारीगर्स उस हिसाब से वर्कशॉप करना चाहेंगे, क्या क्या मशीनरीज लगेगा, तो उस हिसाब से GJPC सपोर्ट करेंगे। और यही बात है कि जैसे बिजनेस ग्रो होंगे, एक्सपोर्ट बिजनेस, डोमेस्टिक बिजनेस, ये सारा चैलेंजेस जो हो रहा है, उसके साथ साथ आई एम श्योर दैट कारीगर्स को भी काम ज़्यादा मिलेगा, एंड उनका तरक्की भी होंगे। तो यही सोच से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ड्यूरिंग द लॉकडाउन इनिशिएटिव्स भी लिया गया था, कारीगर्स बहुत सारे एसोसिएशन से दे हैड आस्क्ड फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। GJPC कोशिश किया था जितना सपोर्ट करने के लिए कर सके, तो उस हिसाब से कोशिश तो जारी है। आगे बढ़ना है तो सबको एक साथ लेके ही आगे बढ़ सकते हैं, तो वही सोच से हम लोग करेंगे।
एक क्वेश्चन है बीडीबी परमानेंट एंट्री कार्ड, एनी बेनिफिट फॉर बीडीबी परमानेंट एंट्री कार्ड जीजेपीसी का मेंबर बनके? संजय जी। बीडीबी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए जीजेपीसी की मेंबरशिप से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। तो हम क्वेश्चंस हम लोग के पास जैसे जैसे आ रहे हैं, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। कलकत्ता में सीएफसी होपफुली और 1 महीने के अंदर हम लोग चालू कर पाएंगे, जो क्वेश्चन किया है श्वेता जी ने। और जल्दी ही कोयम्बतूर में भी एक ज्वेलरी की सीएफसी आ रही है। राइट। और मयंक जी ने पूछा कि लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट कैन प्रोवाइड एक्सपोर्ट गोल्ड। संजय जी, जो बैंक्स है जो एक्सपोर्ट गोल्ड दे रहे हैं, एमएमटीसी है, ये आप थोड़ा। एमएमटीसी है, एसबीआई है, यस बैंक है, ये जो बैंक्स हैं ये गोल्ड दे रहे हैं। हर सेंटर पे अलग अलग है, लेकिन मोस्टली बॉम्बे में ये सारे हैं जो कि दे रहे हैं गोल्ड। आई थिंक दैट जीजेपीसी के तरफ से आप लोगों का जो भी क्वेश्चन था हम लोग फुलफिल कर पाए आंसर देके। आप लोग एसईजेड मेंबर्स हो कि नॉन एसईजेड में हो, डीटीए में, आप लोग डोमेस्टिक होलसेलर्स हो, मैन्युफैक्चरर्स हो जो एक्सपोर्ट के बारे में सोच रहे हैं, आप लोग कारीगर्स हो जो एक्सपोर्ट के बारे में सोच रहे हैं, आप लोग गोल्ड से हो, डायमंड से हो, फैशन सिल्वर लाइफस्टाइल से हो, जेम एंड जेमस्टोन से हो, जहाँ से भी हो। द थिंग इज दैट आप लोग जो ज्वाइन किए हो और जो नहीं भी ज्वाइन किए हो, आप लोग का दोस्त रिश्तेदार जो भी है, जीजेपीसी के तरफ से ये विनती रहेगा कि वी आर देयर। हम लोग का फुल एफर्ट और कोशिश रहेगा आप लोगों को सर्विस करने के लिए। कोई हेल्प चाहिए तो हेल्प देने के लिए विद इन द रूल्स एंड विद इन द फ्रेमवर्क। और आप लोग ज़रूर सबसे शेयर कीजिएगा कि ये बेनिफिट्स है ज्वाइन करके। और बेनिफिट्स बहुत बहुत मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट मिला है, और इसीलिए सालों साल जो एक बार मेंबर बन जाता है वो मेंबर रह जाता है। यही सबसे बड़ा सक्सेस है। तो आई होप दैट ये आप लोग जो भी आज सीखे हो, समझे हो, उस हिसाब से आप लोग डिसीजन लेंगे और लोगों से डिस्कस करेंगे। बॉबी भाई, आप अगर आप कुछ कहें एज अ को कन्वीनर। नहीं, बस अंत में सबको थैंक यू बताना चाहेंगे कि आपने अपना समय निकाला और हम सबकी जो प्रेजेंटेशन है और बातें सुनी। तो आप प्लीज़ वेबसाइट पे जाके आगे जानकारी ले सकते हैं अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहें। और इसमें मेंबरशिप में कैसा है कि एक्चुअली आप कितना बेनिफिट लें, ये आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं इसके ऊपर भी है। तो अगर आप सही तरह से एंगेज रहें, एक एक चीज़, जैसे ये स्वास्थ्य रत्ना का मैंने उदाहरण दिया था, तो हम लोग ये स्कीम अगर 4 साल से 5वां साल कर रहे हैं, अगर मैं लेता ही नहीं हूँ तो मुझे ये इसके बेनिफिट रियलाइज़ नहीं होते। वैसे ही मैं बायर सेलर मीट्स में मैं पार्ट लेता नहीं हूँ, एक्टिव नहीं हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि काउंसिल मुझे कुछ बेनिफिट्स देगी, वैसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप बनना चाहें भी तो उसके बाद आप थोड़ा एक्टिवली काउंसिल के साथ में एंगेज रहें, अगर आप इसके सही बेनिफिट्स चाहते हैं। ऑलराइट, विद दैट थैंक यू वेरी मच एंड लुक फॉरवर्ड कि आप में से जो भी मेंबर बनना चाहें हम उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू। Thank you, Bobby Bhai. Thank you, everyone. Thank you, all the committee members. Thank you, all the Sanjay ji for answering all questions. Thank you, Rashmi ji, for making a very nice slide. So, thank you. और